کلام میں سے سیکھیں گے کہ انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، پچھلے دنوں ہم نے پچھلی کلاس میں جو پہلا لیسن تھا بھائی اسلم بتائے گا، اس کا کون سا ٹاپک تھا؟ خدمت، خداوند کے حضور خدمت کرنا۔ اور خدمت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی مثال اتوار کے میسیج میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ سے خدمت کر سکتے ہیں اور اسپیشل کر کے بھی خدمت کر سکتے ہیں، اور چرچ کے کاموں میں مینجمنٹ میں خدمت کر سکتے ہیں۔ اور اچھا جواب دیا ہے بھائی اسلم نے کہ مختلف طریقوں سے ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، پرستش کر کے، خدا کی حمد کر کے، اور اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلا کر، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے، مقدسوں کی احتیاجیں دفاع کر کے، مسافر پروری کر کے، اور خدمت کا جو ہمارا مرکز ہے وہ خدا ہے، اور ہم نے روس کی میزبانی کرنی ہے۔ آمین۔ تو آج کا جو دوسرا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا تھا، کیوں تخلیق کیا گیا تھا۔ کوئی بتائے گا کہ خدا نے عدن میں انسان کو کیوں بنایا؟ تاکہ انسان خدا کی عبادت کرے۔ آمین۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کچھ حوالہ جات کو، جو پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 8 سے ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 8 سے میں پڑھوں گا، 8 آیت کو۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ آمین۔ ہلیلویا۔ خدا نے عدن میں آدم کو تخلیق کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے کیا بنایا تھا؟ ایک پتلا بنایا تھا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دامن ڈالا، اور اس کے بعد خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا اور اس سے کس کو بنایا؟ ہوا کو۔ اب خدا نے ان دونوں کو تخلیق کیا، اور ان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ خدا کی عبادت کریں، خدا کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، خدا ان سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرنے کے لیے باغ میں آتا تھا، تاکہ آدم کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ کیا رکھے؟ رفاقت رکھے۔ آمین۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ انسان خدا کے ساتھ کیا کرے؟ رفاقت رکھے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اور اسی طرح خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب کو ہم کھولیں گے، اور اس کا باب نمبر 4۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا نے انسان کو کیوں تخلیق کیا۔ ابھی میں نے کہا ہے کیوں تخلیق کیا ہے، لفظ بتائے گا؟ خدا کی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا باب نمبر 4 آیت نمبر 11 کو ہم پڑھیں گے۔ عاشق پڑھنے میں رہنمائی کرے گا۔ اے ہمارے خداوند
اور خدا तू ही तमजीद تو ہی تمجید और इज्जत اور عزت और कुदरत के लायक اور قدرت کے لائق ہے، क्योंकि तू ही کیونکہ تو ہی ने نے सब चीज़ें पैदा की سب چیزیں پیدا کی और वो اور وہ तेरी تیری ही मर्जी से مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ آمین۔ کلام میں خدا یسوع کا مکاشفہ جو یوحنا عرف کو دیا گیا، اور وہ مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 4 آیت نمبر 11 میں کیا کہتا ہے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ آمین۔ کوئی بھی چیز، جس طرح سائنس کہتی ہے کہ بعض دفعہ سائنسدانوں نے یہ بھی کہا ہے نظریہ ارتقاء میں کہ بندر سے انسان جو ہے وہ بنا، اور بہت سارے سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید خود بخود یا کسی مادے سے یا اچانک جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تخلیق ہوگی، لیکن کلام مکاشفہ میں لکھا ہے اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ خدا نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ تاکہ انسان خدا کی کیا کرے؟ تمجید کرے، انسان خدا کی عزت کرے، انسان خدا کی قدرت کے گیت گائے اور اس کے بڑے کاموں کا بیان کرے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی۔ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوئی، درخت ہے یا سمندر ہے یا سمندر کے اندر جاندار ہیں یا انسان ہے، خدا نے اسے تخلیق کیا، اور کلام بھی یہی کہتا ہے اور وہ تیری ہی مرضی تھی اور سب پیدا ہوئی۔ آمین۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے جس طرح یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تو نے ہی سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی تھی اور پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح پولس رسول کا کلسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط اور اس کا باب نمبر 1 آیت نمبر 16 اور 17 کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی۔ پولس کا کلسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط باب نمبر 1 آیت نمبر 16 اور 17، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین۔ کلام میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے کیا کی گئی ہیں؟ پیدا کی گئی ہیں یا قائم کی گئی ہیں، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، تخت ہوں یا ریاستیں ہوں، حکومتیں ہوں یا اختیارات ہوں، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا کیا ہے؟ خدا ہے۔ جتنی تخلیق ہوئی اس تخلیق میں خدا کا کلمہ، خدا کا کلام یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ تخلیق میں خدا باپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آمین۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین۔ اور یسوع نے مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہ سب چیزوں سے پہلے کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا باب نمبر 1 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے
खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। आमीन। यानी कि मैं अव्वल हूँ और मैं ही आखिर हूँ। तो यानी यीशु मसीह जो है वो अल्फ़ा है और ओमेगा है। आमीन। और इसी तरह ईमाल की किताब यूहन्ना की इंजील के बाद ईमाल की किताब को खोलेंगे और उसका बाब नंबर 17 आयत नंबर 28 को हम देखेंगे। हाँ जी। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। आमीन। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। खुदा का बंदा कहता है कि हम उसी में जीते हैं, यानी किसमें? यीशु में, और चलते फिरते हैं और वो मौजूद है। कलाम में क्या लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में। आमीन। इसी तरह खुदा के कलाम में से देखेंगे हम ये जो हवालाजात पढ़ रहे हैं, इनका पढ़ने का यही मकसद है कि ये कायनात क्यों तख्लीक की गई है, या खुदा ने इंसान को क्यों तख्लीक किया है। इंसान को रफ़ाकत रखने के लिए तख्लीक किया है, और जितनी कायनात है ये सारी इस तख्लीक में खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, जिसका नाम यीशु है, वो खुदा के साथ है। आमीन। आइए इसी तरह खुदा के कलाम में से देखेंगे इंसान को तख्लीक इसलिए किया गया ताकि वो खुदा की क्या करे? इबादत करे। और मुकाशवा में लिखा है कि वो हम्द, तमजीद, कुदरत और जलाल और सिताइश के क्या है? लायक है। और कोई भी शख्स जो है वो कलाम के बगैर, यीशु के बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में से अगर हम देखें उसका बाब नंबर 14 आयत नंबर 6 में लिखा है, यीशु के वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता। आमीन। खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, पहला हमने ये सीखा है, और तख्लीक इसलिए किया ताकि इंसान खुदा के साथ क्या रखे? रफ़ाकत रखे, खुदा के साथ तल्लक रखे। और तल्लक रखने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, एक शख्सियत की, और उस शख्सियत का नाम यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 6 में लिखा है कि यीशु के वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता। हमने पहले खुदा को जाना या यीशु को जाना? पहले हम यीशु को जानते हैं, तो फिर हम खुदा बाप के पास जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा का फर्जंद होने का अख्तियार बख्शा, हक बख्शा। तो जो यीशु को पहले कबूल करता है, उसे फिर वो हक बख्शता है कि वो हम आसमान के खुदा को बाप कहकर पुकार सके। आमीन। इंसान को क्यों तख्लीक किया? पहला पॉइंट क्या था? नहीं, अभी हमने सीखा है खुदा के साथ रफ़ाकत रखे, पहली हेडिंग ये है। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या होगी कि इंसान खुदा की हमद और सिताइश करे। पहला पॉइंट ये था, हेडिंग ये थी कि खुदा के साथ हम रफ़ाकत रखें, या खुदा के साथ हम क्या करें? तल्लक रखें। आमीन। दूसरा पॉइंट ये है कि खुदा की हमदो सिताइश करे। कौन करे? इंसान। और इंसान कौन है?
हम कौन हैं? तो इंसानों ने क्या करना है? पहला काम परस्तिश से पहले तल्लक का है। अगर मैं कहूँ कि मेरा भाई असलम के साथ तल्लक है, मैं भाई असलम के साथ बड़ी मोहब्बत रखता हूँ और इससे मैं 1 साल तक मिलूँ ना, और मैं यही कहता रहा हूँ कि इससे मेरा तल्लक है, इससे मुझे मोहब्बत है, मैं मोहब्बत तो रखता हूँ लेकिन तल्लक कायम नहीं है। तो यही मकसद है, हम खुदा से तो मोहब्बत रखते हैं, बाज़ दफ़ा हमारा खुदा के साथ तल्लक नहीं होता। तो पहला काम जो है वो खुदा के साथ तल्लक रखना, यानी कि रफ़ाकत रखना। और रफ़ाकत किस तरह आएगी? यस्सु को कबूल करके। जब यस्सु की हजूरी में आएंगे तो यस्सु हमें बाप के पास ले जाएगा। चरवाहा क्या, कौन है? यस्सु है, और यस्सु भेड़ों को का चरवाहा है, और यस्सु उस राह पर भेड़ों को लेकर जाता है जहाँ पर जो बाप के पास रास्ता जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि खुदा की हमद और सिताइश करें। इंसान को इसलिए तख्लीक किया गया ताकि इंसान खुदा की हमद और सिताइश करे। तो यशायाह की किताब उसका बाब नंबर 43, यशायाह की किताब बाब नंबर 43 आयत नंबर 7 में लिखा है, बड़ी खूबसूरत ये बाइबल की स्टडी है और इससे मुझे भी बरकत मिल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप भी बरकत पाएंगे। आमीन। कलाम में लिखा है यशायाह 43 बाब आयत नंबर 7 में, हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया। कलाम में लिखा है हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है। नाम कब हमें मिलता है? जब हम यीशु को कबूल करते हैं। पहले ऊपर वाली आयत में पढ़ा कि कोई शख्स यीशु के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, और इसी पुराने आदनामे में लिखा कि उसने हमारा नाम अपने हाथों की हथेली पर लिखा। और कलाम में लिखा हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है। हम किसके नाम से कहलाते हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम मसीह पर ईमान रखते हैं, हम मसीही हैं। हम किसके नाम से कहलाते हैं? यीशु के। हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है, हर एक जो मसीही है, और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया है। खुदा ने क्यों खलक किया है? ताकि हमारे वसीले खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे वसीले क्या ज़ाहिर हो? और यीशु ने भी एक जगह पर कहा कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा बाप को जलाल देंगे, यानी कि तुम मसीही हो गए, तुम अच्छे काम करोगे। एक दूसरा शख्स जो तुम्हें नहीं जानता वो कहेगा ये शख्स मसीही है, ये नेक है, रास्तबाज है, तो किसको जलाल मिलेगा? आसमान के खुदा को। कलाम में लिखा है और हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, जिसे मैं ही ने बनाया। हालेलुया। खुदा हम सब का खालिक, हम सब का मालिक जो है वो खुदा है, जिसकी कुरान पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आमीन। हालेलुया। तो यशायाह 43 आयत नंबर 7 कहती है कि खुदा ने, हम खुदा के नाम से कहलाते हैं और खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया, इसलिए तकलीफ किया ताकि हम खुदा को क्या दें? जलाल दें। और जलाल कैसे दे सकते हैं? उसकी परस्तिश करके, खुदा की हमद करके। आमीन। और इसी तरह हम आयत नंबर इसी बात की 21 को देखेंगे। यशायाह 43 यही चैप्टर और आयत नंबर 21 को भाई असलम के साथ हम पढ़ेंगे।
कलाम में लिखा है, मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। ताकि वो मेरी हमद करे। क्या करें? आपको खुदा ने क्यों तख्लीक किया? नहीं, अभी आयत पढ़ी है, कलाम में जो लिखा है वही बोलना है, ताकि हम खुदा की क्या करें? हमद करें। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। खुदा ने हमें अपने लिए बनाया ताकि क्या करें? हम खुदा की हमद करें। हमें खुदा ने तख्लीक किया ताकि खुदा की क्या करें? हमद करें। आमीन। और हमद कौन शख्स कर सकता है? जो खुदा से मोहब्बत रखता है। कौन कौन खुदा से मोहब्बत रखता है? आमीन। जो खुदा से मोहब्बत रखता है तो रफ़ाकत भी रखता होगा। सब रफ़ाकत रखते हैं। रफ़ाकत का मतलब है कि किसी शख्स के पास आए, किसी की हजूरी में आ जाना, किसी के साथ तल्लक कायम करना। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमद और सिताइश खुदा की करना, कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया। हमद और सिताइश वही शख्स कर सकता है जो खुदा से मोहब्बत रखता है, और मोहब्बत करने वाला ही तल्लक कायम कर सकता है। तल्लक का जो मोहब्बत रखता है वही रफ़ाकत करता है, जो मोहब्बत करता है वही सिताइश करता है, वही परस्तिश करता है। तो मोहब्बत के बारे में यूहन्ना का लिखा गया पहला खत और उसका बाब नंबर 4, बड़ी मशहूर आयत है ये। यूहन्ना का पहला खत बाब नंबर 4 आयत नंबर 19 को मैं पढ़ूँगा। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। आमीन। समझ आ रही बेटा? अच्छा, आपके पास बाइबल है? बाइबल घर में है? अपनी पर्सनल है या सब घर वाल की एक ही? सब की एक ही है? चलिए हम आपको बाइबल भी गिफ्ट करेंगे, ठीक है? कलाम में क्या लिखा है कि जो शख्स मोहब्बत करेगा वही हमद और परस्तिश करेगा। हमारा ये चैप्टर है, टॉपिक है। इसी टॉपिक पर रहते हुए पहला यूहन्ना 4 बाब आयत नंबर 19 में इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। पहले किसने मोहब्बत की? खुदा ने पहले कैसे मोहब्बत रखी? सबसे पहले पैदाइश में उसने मट्टी, एक बेजान चीज़ को दिया, उसका पुतला बना दिया, उसके नथनों में ज़िंदगी का रूह फूंका होगा खुदा ने अपने रूह में से। ये मोहब्बत है। और इससे भी बढ़कर मोहब्बत क्या थी कि जब इंसान ने गुनाह किया तो उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी इस पर ईमान लाए हलाक न हो के हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। फर्स्ट लव। अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपनी भाई से अदावत रखे तो झूठा है। कलाम में लिखा है अगर कोई शख्स, अगर दो भाई हैं, जिस तरह कायन और हाबल था, कायन हाबल से क्या करता था? नफरत करता था। अम्मी अब्बे ने कहता से मैनू इन्ना मोहब्बत है, लेकिन दिल से क्या था? वो खुदा से और अपने भाई से दूर था। और कलाम में लिखा है अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे, यानी कि भाई से दुश्मनी रखे, भाई से नफरत करे तो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। जो परस्तिश है, यही परस्तिश है। अगर हम, खुदा ने क्या हुक्म दिया है कि हम अपने भाई से क्या करें? मोहब्बत रखें। अगर हम कहें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं
और भाई असलम से क्या करते हैं, अदावत रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें खुदा से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर हम देखे हुए शख्स से मोहब्बत नहीं रख सकते तो हम देखे खुदा से किस तरह मोहब्बत रखेंगे। क्योंकि कलाम यही कहता है, और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। भाई मसीहत में जो भाई है, सिर्फ यही नहीं कि हमारे साथ जो शख्स पैदा हुआ है वही हमारा भाई है। जो मसीही घराने में है, मसीही का क्या है, भाई है। हम सब किसके बच्चे हैं? सबसे पहले जिस ज़मीन को ना सोचें। अगर कलाम में जिस तरह पौलुस कहता है कि रूहानी लोग रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, तो रूहानी होकर सबसे पहले सोचेंगे तो हम किसके बच्चे हैं? तो जो बाप होता है उसके जो बच्चे थे वो आपस में क्या थे, भाई। इसी तरह हम जो हैं मसीही हैं, हम सब जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, भाई। अगर असलम मुझसे कहे कि पादरी साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और जो जिस चीज़ की मुझसे इससे तवक्को अगर वो ये ना करे तो इसका मतलब ये मोहब्बत नहीं है। यही कलाम में लिखा है, हमें एक दूसरे से समझना है कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल के साथ प्रैक्टिकल करके भी हमने दिखाना है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा से क्या करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। और मोहब्बत जो है ये परस्तिश और हमद में आती है। मरकज़ की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 30 को पढ़ेंगे। मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील, नया अहदनामा मत्ती की अंजील के बाद, और उसका बाब नंबर 12 आयत नंबर 30 को हम पढ़ेंगे। आशर पढ़ेंगे। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। आमीन। पहली मोहब्बत जो है, खुदा यीशु से किसी ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो यीशु ने क्या कहा? खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। फिर क्यों रहेगा? सोचने का। फिर हम खुदा की हजूरी में आ जाएंगे, खुदा के साथ बातें रखेंगे और खुदा की क्या करेंगे, प्रस्तीश करेंगे। मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो खुदा की हम्द करेगा और खुदा की क्या करेगा, सिताइश करेगा। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। अगर इसमें मैं ये सोचता हूँ, इसमें भी एक बड़ा मुकाशफा है। अगर असी सारे दिन ना सारी अकल सारी जान तो ताकत ना खुदावन ना मोहब्बत करिए, जिसम भावें दर्द होंदा हो, भावें बीमार हो, परेशान हो। मैं सोच रहा था कि दुनिया की सबसे पुरसकून जो जगह है वो चर्च में खुदा की हज़ूरी है। या अगर आपका कमरा है उसमें आप खुदा के साथ वफ़ात करते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट जो है वो खुदा की हज़ूरी में मिलेगा। तो यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं है। जिस तरह पहली आयत में पढ़ा यूहन्ना 1:4 में कि अगर कोई खुदा से मोहब्बत रखता है और अपने भाई से अदावत रखे तो क्या है, वो झूठा है। क्योंकि
देखे हुए शख्स से मोहब्बत नहीं रखी, वो अनदेखे खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकता। इसलिए यीशु ने कहा कि तो अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये कि अपने पड़ोसी से भी अपनी मानद मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। तो हम्द कौन करेगा, सिताइश कौन करेगा? वही शख्स जो खुदा से मोहब्बत रखता है। आमीन। इसका दूसरा जो नुक्ता ये है, सिलेबस के मुताबिक खुदा ने दुनिया को फतह करने के लिए हमें नजात नहीं दी, मगर वो अपना मंसूबा की तकमील के लिए इंसानों को इस्तेमाल करता है। आमीन। यानी कि खुदा ने हमें नजात देने के लिए यीशु को दिया, और वो अपने मंसूबा को पूरा करने के लिए मंसूबों को तकमील करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करता है। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5 बाब आयत नंबर 18-19 में लिखा है, बाइबल कहती है कि मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है। मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है। आदम के गुनाह के सबब से इंसान और खुदा की रफ़ाकत में जुदाई बढ़ गई। इस रफ़ाकत में बहाल होने का वाहिद रास्ता यीशु मसीह पर हमारा ईमान, उसे कबूल करना और उसका इकरार करना है। आमीन। कलाम में लिखा है कि आदम ने जब गुनाह किया तो इंसान और खुदा का जो है रफ़ाकत में क्या हुई, जुदाई पड़ गई। इसको बहाल करने के लिए वही बात कि यीशु मसीह पर हमें ईमान लाना है, उसे कबूल करना है और इसका क्या करना है, इकरार करना है। पौलुस का रोमियो की कलीसिया को लिखा गया खत बाब नंबर 6 आयत नंबर 22 को मैं पढ़ूँगा। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन। हालेलुया। और इसी तरह पहला दूसरी जो हेडिंग हमने देखी अभी, खुदा की हम्दो सिताइश करें। इंसान को खुदा ने तख्लीक किया ताकि खुदा की इंसान जो है वो खुदा की हम्दो सिताइश करे। और क्या इंसान कर सकता है? खुदा की परस्तिश के काम करे। क्या करे? परस्तिश के काम करे। बहुत से मसीही खुदा के लिए काम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश रहते हैं, मगर ऐसा काम करते हुए और वो उसके साथ अपनी रफ़ाकत के वक्त को नज़रअंदाज कर देते हैं। परस्तिश के काम, जिस तरह कोई शख्स जो है वो सिर्फ चर्च के सिर्फ काम ही करता जाए, सफाई करता जाए, और खुदा के साथ रफ़ाकत ना रखे, ना खुदा की हम्द करे, ना खुदा की सिताइश करे, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि असल मकसद जो है वो हम खुदा के साथ रफ़ाकत करें। चर्च के काम भी करना ये भी खिदमत का हिस्सा है, लेकिन इस खिदमत के साथ साथ रफ़ाकत में रहना, खुदा के साथ तल्लुक़ रखना ये भी ज़रूरी है। क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 मैं पढ़ देता हूँ। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करेंगे। आमीन। और खुदावन
काम करने वालों को नहीं बल्कि परस्तारों को ढूंढता है। खुदा के खादम में लिखा है कि खुदा काम करने वालों को नहीं बल्कि परस्तारों को ढूंढता है। रूह और सच्चाई के साथ खुदा के हुजूर मौसर परस्तिश के लिए बुलाए हुओं को फ़ौकल फितरी कुव्वत की ज़रूरत होती है, जो कि रूह कुदूस के बपतिस्मा के वसीला से हासिल होती है। परस्तिश को मौसर बनाने के लिए और अगर हम चाहते हैं कि हमारी परस्तिश में सुपर नेचुरल पावर ज़ाहिर हो, फ़ौकल फितरी कुव्वत, तो इसके लिए रूह कुदूस के बपतिस्मा की क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि यीशु ने भी कहा कि जो सच्चे परस्तार है वो बात की रूह और सच्चाई से क्या करेंगे, परस्तिश करेंगे। पहला शमूएल हवाला बाब नंबर 12 आयत नंबर 24 को मैं पढ़ देता हूँ कि वक्त इतना हो कि तुम खुदा से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। और सच्चाई क्या है, जो यीशु ने कहा कि जिस तरह सुपर नेचुरल पावर के लिए हमें रूह के बपतिस्मा की ज़रूरत है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसके क्या करें, परस्तिश करें। और सच्चाई क्या है, यीशु ने की क्या कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये है, आई एम द वे, द ट्रू एंड लाइफ। ट्रू यानी कि कहते हैं सच्चाई को। रूह कुदूस सच्चाई का रूह कहलाता है। कौन सा रूह कहलाता है? सच्चाई का। और हर ईमानदार के अंदर मौजूद होती है, लिहाजा ये सच्चाई की जानब आपकी रहनुमाई करेगा। उसके बाद हम देखेंगे हमें अपने आसमानी बाप के काम से वाबस्ता रहना चाहिए, क्योंकि उसकी खिदमत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। बहुत से लोग खुद को अच्छे काम करने में मसरूफ़ रखते हैं कि वो खुदा को वक्त ही नहीं दे पाते। मुमकिन है कि आप भी कुछ कर रहे हों, वो एक अच्छा ख्याल के तहत कर रहे हों, मगर क्या ये सच में एक अच्छा ख्याल है? कहता है कि हो सकता है कि आप खुदा की खिदमत के काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी में मसरूफ़ हैं, लेकिन आप खुदा की क्या सिताइश, खुदा की हम, खुदा की परस्तिश और खुदा के साथ अगर रफ़ाकत नहीं रखते तो क्या सोचे ये अच्छा अमल है? अगर आप कोई शख्स बीमार हो और उसे मरीज़ डॉक्टर के पास ले जाएं और उसकी देखभाल करें, ये अच्छी बात है, खिदमत है। लेकिन अगर आपका खुदा के साथ तल्लुक़ ना हो तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। पहला हुक्म यही है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, सारी ताकत और अपनी अकल से मोहब्बत रखें। यानी कि पहली प्योरिटी, जिस तरह हमने पहला लेसन, जो पहला सबक था, उसमें देखा खुदा के हुजूर में खिदमत करना। और खिदमत करने में 3 चीज़ें दरकार है। सबसे पहला खुदा मरकज़ हो, दूसरा रूह कुदूस की हम क्या करें, मेज़बानी करें, और तीसरा क्या था कि हम खुदा का इंतज़ार करें। तो ये वही बात है कि सबसे पहला हर खिदमत में अगर कोई शख्स किसी को, अगर जो कोई ईमानदार है तो वो मसीही जो है वो किसी को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, तो वो इसलिए लेकर जाएगा कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, खुदा ने मुझे ये बताया है कि तू अपने भाई की क्या कर, मदद कर। अगर वो खुदा को नहीं जानता और नेकी का काम कर रहा है तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह यीशु ने पहले कलाम में यूहन्ना में पढ़ा, यूहन्ना के खाते में, कि अगर कोई शख्स खुदा से मोहब्बत करता है और अपने भाई से अदावत रखता है तो वो कौन है? झूठा है। तो सबसे पहले हमने खुदा से मोहब्बत करनी है और उसके बाद अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपने पड़ोसियों से। फर्स्ट लव खुदा से मोहब्बत है।
اس کی بڑی خوبصورت مثال لوکا کی انجیل میں باب نمبر 10 آیت نمبر 38 اور 38 سے لے کر 42 تک ہم دیکھیں گے مریم اور مارتھا کی مثال۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل آخری والا پڑھیں گے، باقی ہم نیکسٹ بائبل کلاس میں دیکھیں گے کہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر ہم 42 تک اس کو پڑھیں گے۔ ہاں جی اسلم بھائی پڑھنے میں رہنا ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر جب جا رہا تھا تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کے کلام سن رہی تھی۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس نے اسے فرمایا کہ میری مدد کر۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکروں میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے۔ یہاں پر دو بہنیں ہیں، ایک مارتھا اور ایک مریم۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم اس کی بہن تھی جو یسوع مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا کیا سن رہی تھی؟ کلام سن رہی تھی۔ اور اچانک مارتھا جو ہے وہ گھبرا کر یسوع کے پاس آئی اور یسوع سے کہا کہ اے خداوند، شکایت کرنے لگی کہ مریم جو ہے وہ میری مدد نہیں کر رہی، اس سے بھی بھیج تاکہ وہ میری مدد کرے۔ لیکن یسوع نے اسے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا۔ کھانا بنانا بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو خدمت ہے وہ خدا کی خدمت ہے، یسوع کی خدمت ہے۔ ہم نے سنا دیکھا پچھلے لیسن میں کہ خدمت کیا ہے۔ خدمت یونانی زبان کے لفظ دیا کنوس سے نکلا۔ دیا کنوس کا مطلب ہے خدمت کرنا، اور دیا کیونیا کا مطلب ہے خادم، یعنی کہ کھانا بنانے والا بھی خادم ہے، پرستش کرنے والا بھی خادم ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا بھی خادم ہے، اور خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا بھی خادم ہے۔ لیکن یہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، مختلف ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان میں سب سے خوبصورت اور افضل جو خدمت ہے وہ خدا کی خدمت کرنا ہے، یسوع کے ساتھ رفاقت کرنا ہے، اس کی حضوری میں بیٹھنا ہے۔ جس طرح لوکا کی انجیل میں ایک نبیہ تھی اور وہ 84 برس سے کیا تھی؟ بیوہ تھی، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ روزے اور دعائیں رکھ کر خدا کے گھر کی کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی تھی۔ تو ہم نے بھی خدا کی خدمت کرنا ہے، اور ہم نے اپنے مقصد کو دیکھنا ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں تخلیق کیا۔ آج ہم نے سیکھا ہے 3 پوائنٹس پر۔ پہلا کہ خدا نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت کریں۔ دوسرا، خدا کی ہم حمد و ستائش کریں، اور تیسرا، پرستش کے کام۔ آمین۔ کہ کس طرح خدا کی پرستش کریں۔ آئیے ہم دعا کریں گے، باقی ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے اس لیسن کو۔ آئیے سب خدا کا شکریہ ادا کریں آج کے خوبصورت موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے خدا نے جو ہمیں بخشا، جس میں آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ کس طرح خدا کے ساتھ رفاقت کریں، خدا کی حمد و ستائش کریں اور خدا کی پرستش کریں۔ کوئی بھی جماعت میں دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے۔
پاک شاگردوں پہ سکھائی اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے تیرا میرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دی، اور جس طرح قرض بخشتے ہیں ہماری قسم بخش بے آزمائش میں ہمارے برائے سچا بادشاہ قدرت جہاں بے شک باپ اور بیٹے کے نام سے